Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter 3, growing new plants. So students, in this chapter we shall learn about the how does the plants grow, what are the types of the plants reproduction we will study about in this chapter. Now students, let's look at chapter. Chapter 3, growing new plants. Get start. Seeds of some plants are given below. Can you identify to which plant they belong? Now students, you can identify the images and write their names. Now your first one is image shown is corn. Write it here. Next is chickpea. Next is cowpea. Next is lentils. Next is peanut. And last one is yellow lentils. Now students, let us start the chapter. Reproduction is the process by which a living organism is able to produce more of its own kind. The continuity of life on earth is possible only because of reproduction. Plants mainly reproduce in the following ways. Reproduction बच्चों एक प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग बींग्स क्या करते हैं, अपनी ओन स्पीशीज को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं. अर्थ पे बच्चों लाइफ कंटिन्यू है बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. प्लांट्स बच्चों डिफरेंट टाइप्स के रिप्रोडक्शन करते हैं. नाउ स्टार्ट विद द रिप्रोडक्शन बाय सीड्स. The process by which the seed change into seedling is called germination. When the seed gets the right condition of air, water and warmth, it germinates. A seed needs air to breathe, water to soften the seed coat, the water and store food in the leaves mixed to make soluble food for the embryo, and warmth to make the cells of the embryo active. In this way, the embryo starts growing. बच्चों एक प्रोसेस होता है जिसमें सीड जो है सीडलिंग में चेंज होता है, उसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं. जब सीड को राइट अमाउंट में एयर, वाटर और हीट मिलती है तब सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है. बच्चों सीड्स को एयर की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए, वाटर की ज़रूरत होती है सीड कोट को सॉफ्ट करने के लिए, और वो क्या करता है अपने फूड को स्टोर करके रखता है लीव्स में, और फिर वो धीरे धीरे फूड जो है एम्ब्रियो तक पहुंचता है. बच्चों जो वार्मथ होती है, हीट जो होती है, वो क्या करती है एम्ब्रियो को एक्टिव करती है, इसी वजह से एम्ब्रियो ग्रो करना स्टार्ट करता है. Now students, can you tell one question? Why does a farmer leave space while sowing seeds? फार्मर बच्चों स्पेस क्यों छोड़ते हैं सीड्स को सो करते हुए, जिससे कि सीड को प्रॉपर अमाउंट में एयर, वाटर और सनलाइट मिल पाए. नाउ स्टूडेंट, लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. Flowers are the reproductive organs of plants. Most flowers turn into fruits which have seeds. These seeds can be used again to grow new plants. Flowers बच्चों प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो धीरे धीरे फ्रूट्स में चेंज होते हैं. फ्रूट्स में सीड्स होते हैं और उसी से न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं. Now, before understanding how a seed grows into a new plant, let us first understand the structure of a seed. बच्चों सीड कैसे ग्रो करता है न्यू प्लांट में, उसे समझने से पहले हम सीड के स्ट्रक्चर को समझेंगे. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. अ सीड इज कवर्ड बाय एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट. बच्चों सीड की आउटर कवरिंग को हम सीड कोट कहते हैं. इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सीड. बच्चों सीड कोट का मेन फंक्शन होता है सीड को प्रोटेक्ट करना. Inside the seed are the seed leaves, also called the cotyledons. सीड के अंदर सीड लीव्स होते हैं, उसे हम cotyledons कहते हैं. Cotyledons store food for the baby plant. Cotyledons क्या करते हैं, बेबी प्लांट के लिए फूड को स्टोर करते हैं. Inside the cotyledon is the baby plant called the embryo. Cotyledon के अंदर बेबी प्लांट होता है, उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं. This baby plant has a tiny shoot called the plumule and a tiny root called radicle. बच्चों बेबी प्लांट का जो शूट सिस्टम होता है उसे हम प्लूम्यूल कहते हैं और बेबी प्लांट के रूट सिस्टम को हम रेडिकल कहते हैं. नाउ स्टूडेंट, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. इसमें आपको कॉटिलीडॉन शो को रखा है, प्लूम्यूल, रेडिकल एंड दी सीड कोट. नाउ नेक्स्ट है हाउ अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. सीड कैसे न्यू प्लांट में ग्रो करता है. All seeds need water, oxygen and the proper temperature for germination. बच्चों सारी ही सीड्स को पानी की भी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है और टेम्परेचर भी चाहिए होता है. A seed goes through a number of stages to develop into a seedling. सीड बच्चों बहुत सारी स्टेजेस से निकलता है सीडलिंग में ग्रो करने के लिए. Look at the first point. The seed absorbs water and swells until the coat becomes smooth. सीड जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है और स्वेल्स हो जाता है, मतलब फूल जाता है और उसका सीड कोट सॉफ्ट हो जाता है.
The cells of the embryo starts dividing and multiplying as they get water, air, sunlight and nutrients. As a result, the embryo inside the seed grows into size. This results in breaking of the seed coat. बच्चों जो सेल्स होते हैं एम्ब्रियो के वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे जब उन्हें वाटर, एयर और सनलाइट मिलती है और एम्ब्रियो जो होता है सीड के अंदर ग्रो करता है, अपना साइज को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से वो सीड कोट से बाहर निकलता है. द रेडिकल स्टार्ट्स ग्रोइंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. रेडिकल जो है नीचे की तरफ ग्रो करते हैं यानी रूट्स. देन द प्लीम्यूल बिगन्स टू ग्रो इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. प्लीम्यूल यानी जो स्टेम्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती हैं. द कॉटिलिडॉन्स प्रोवाइड फूड टू द एम्ब्रियो. कॉटिलिडॉन जो होता है फूड प्रोवाइड करता है. वंस द लीव आर फॉर्म द कॉटिलिडॉन आर शेड. जब उसकी पत्तियां बन जाती हैं बच्चों प्लांट की तो कॉटिलिडॉन जो होता है शेड ऑफ हो जाता है. A new plant grow from the seed. एक नया पौधा कहाँ से बनता है बच्चों? सीड से. Now student there are the stages of germination. Now become pacham, right, true or false. फर्स्ट है आपका many plant reproduce through seeds. बहुत सारे प्लांट सीड्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं. Yes, it is true. Seeds have 3 seed leaves or cotyledons. No, it is false. The seed coat breaks and the young plant comes out. Yes, it is true. All the seeds grow into new plants. Yes, it is true. Now students, let's do fun activity. Take a few kidney beans or gram seeds, place them in a bowl with a thin moist cotton cloth. Keep them on a window sill where they get air and sunlight. Keep the cloth moist. You will observe that the radicle grow first and then the plumule. बच्चों आपको क्या करना है, थोड़े से किडनी बीन्स यानी ग्राम सीड्स लेने बाउल के अंदर और उस बाउल वो सीड्स जो है आप मॉइस्ट क्लॉथ में रखेंगे यानी जो वेट क्लॉथ होता है उसके अंदर रखेंगे और आपको उसे विंडो पे प्लेस करना है जहाँ से प्रॉपर एयर भी मिले उसे और सनलाइट भी मिले. तो आप कुछ हफ्तों के बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसका रेडिकल सिस्टम सबसे पहले ग्रो करना स्टार्ट कर दिए यानी उसकी रूट्स आने स्टार्ट हो गए. उसके बाद में प्लीम्यूल भी ग्रो करेगा. नाउ स्टूडेंट ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. In order to prevent overcrowding and competition of air, water, sunlight and nutrients, seeds need to be dispersed away from the parent plant. This process of carrying seed away from the parent plant is called the dispersal of seeds. बच्चों ओवरक्राउडिंग या कंपटीशन को रोकने के लिए सीड्स के बीच में एयर, वाटर या सनलाइट के लिए सीड्स का डिस्पर्सल करना बहुत ज़रूरी होता है यानी कि सीड्स को दूर दूर स्कैटर करना. उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. नाउ एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल. Seeds are scattered by different natural agents. Some of them are. Now first one is wind. Seeds that are small and light are generally dispersed by the wind. Seed of cotton and dandelion have hair around them. These hair help in carrying the seeds by the wind. Seeds of some plants such as drumstick and maple have a wing-like structure that help in seed dispersed by wind. जो सीड्स होते हैं कुछ स्मॉल होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, जो विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं. आप कॉटन सीड्स के एग्जांपल, डैंडलियन के एग्जांपल ले सकते हैं. बच्चों कुछ सीड्स के ऊपर हेयर्स भी होते हैं जैसे ड्रमस्टिक या मैपल. वो क्या करते हैं जब हवा चलती है तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं. नेक्स्ट इज वाटर. द सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक वाटर लिली, कोकोनट, विलू, वाटर mint are light and can float on water. The seeds also have a woody covering that enable them to float in water for a long time without rotting. The seeds are carried to suitable places for germination by the water currents. बच्चों कुछ प्लांट की सीड्स होते हैं जैसे वाटर लिली, कोकोनट या विलो. वो लाइट होते हैं, हल्की होते हैं, वाटर सरफेस पे आसानी से फ्लोट कर सकते हैं. बच्चों जो उनकी वुड की कवरिंग होती है वो उन्हें उनकी सीड को खराब होने से बचाती है. और बच्चों जैसे ही वाटर करंट्स फ्लो होते हैं तो ये सीड्स एक जगह से दूसरी जगह स्कैटर हो जाते हैं. नेक्स्ट इज एनिमल्स. फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स सच एज टाइगर क्लॉज एंड zendium have hook-like structure. These hooks stick to the fur of animals, of claws of human beings and carry seeds with them. Some plants have juicy fruits that animals and birds eat. The seeds of these fruit pass through the gut of animals and are released at different places because these seeds cannot be digested. Guava and tomato have such type of seeds. कुछ हमारे प्लांट्स के फ्रूट की सीड्स कैसे होते हैं? उनका हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है. जैसे कोई भी एनिमल के फर पे वो स्टिक हो जाते हैं या हमारे कपड़ों पे वो स्टिक हो जाते हैं जैसे कि xanthium सीड्स. बच्चों फिर वो क्या कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स कैसे होते हैं? जूसी होते हैं. तो एनिमल्स ये बर्ड्स क्या करती हैं? उन जूसी फ्रूट को ईट करती हैं और उनके सीड्स को गट के थ्रू रिलीज करती हैं. फिर क्या होता है बच्चों कुछ क्या सीड्स हम ईट नहीं कर सकते जैसे गुआवा के हो गए तो वो क्या करते हैं एज अ थ्रो कर देते हैं और डिफरेंट प्लेस पे वो स्केटर हो जाते हैं. नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन.
Some seeds like those of geranium, euphorbia, poppy, etc. grow in a seed pod. The heat from the surroundings causes the seed pod to dry out. If then burst open, releasing the seed into the air. The seed then grow into a new plant under suitable conditions. वो सीड्स जो होते हैं जैसे जर्नेमियम, यूफोरबिया, ये पॉपी सीड्स जो होते हैं वो सीड पॉट के अंदर ग्रो करते हैं। ज्यादा रोशनी की वजह से, ज्यादा गर्मी की वजह से उनका सीड पॉट ड्राई हो जाता है, फिर एकदम से वो बर्स्ट के साथ ओपन होते हैं और उनके जो सीड्स होते हैं डिफरेंट प्लेस पे स्कैटर हो जाते हैं। Now next is reproduction by spores. Non-flowering plants like ferns or mosses do not reproduce by seeds, they make pores. Each spore can grow into a new plant. The spore of a fern grows into a heart-shaped leaf which then develops into the main fern plant. Mushroom and other fungi also make spores. कुछ हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि फर्न्स या मॉसेस, वो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। उनका हर एक स्पोर एक न्यू प्लांट को ग्रो करता है। जो इनका स्पोर होता है फन का वो एक हर्ट शेप लीफ को ग्रो करता है, उसके बाद ये आपका मेन फन प्लांट डेवलप होता है। मशरूम्स और फंगाई जो है स्पोर फॉर्मेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन बाय बॉडी पार्ट्स. There are some plants which grow from certain parts such as root, stems and leaves of the parent plant. कुछ प्लांट्स जो होते हैं पार्ट्स के थ्रू ग्रो करते हैं जैसे कि रूट हो गए, स्टेम्स हो गए या लीव्स हो गए। नाउ स्टूडेंट लेट्स लुक अमेजिंग फैक्ट. The process of growing plants from different parts other than the seed is called the vegetative propagation. बच्चों एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स जो होते हैं सीड के अलावा उसके पार्ट से ग्रो करते हैं, उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रूट्स. द रूट ऑफ प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो, कैरेट एंड रेडिश grow to develop into shoots when kept in water for some time. These shoots later grow into very new baby plants. बचे रूट्स यानी कि कुछ प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू ग्रो करते हैं जैसे स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली, ये सारे शूट सिस्टम जो होता है इसमें वाटर स्टोर रहता है, थोड़े समय के बाद इसमें से न्यू बेबी प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ स्टूडेंट लेट्स डू फन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व अ न्यू प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स. हमें ऑब्जर्व करना है कि कैसे एक प्लांट रूट से ग्रो कर सकता है। Now put a sweet potato in a glass jar containing water by using toothpick as shown in the given figure. You will find that after a few days new stems and leaves are growing on the sweet potato. आपको क्या करना है, शकरकंदी लेनी है, जार के अंदर उस जार में पानी को फिल करना है, आप टूथपिक से उसे फिगर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे उसमें से स्टेम्स और लीव्स निकलना स्टार्ट हो गई। नाउ नेक्स्ट आपका स्टेम्स. Plants like ginger and potato are grown from their underground stems. These plants have thick and fleshy underground stems because they store food in them. New plants grow from the buds present on these stems when they are kept in the moist soil. बच्चों कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे अदरक या आलू, वो स्टेम्स के थ्रू ग्रो करते हैं। जो इनकी प्लांट्स थिक होते हैं, फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है जिसके अंदर इनका फूड स्टोर रहता है बच्चों, इनके ऊपर बर्ड्स होती है, बर्ड ही बच्चों प्रेजेंट होती है इनकी स्टेम्स के ऊपर जो धीरे धीरे मॉइस्ट सॉइल के प्रेजेंट में एक न्यू प्लांट को ग्रो करती है। नाउ नेक्स्ट इज some plants are known from the pieces of their stems known as stem cuttings. Plant like rose, hibiscus, coleus and sugarcane are the examples of such plants that are grown from the stem cuttings. कुछ प्लांट्स जो होते हैं बच्चों स्टेम के पीसेस के थ्रू ग्रो करते हैं, उनके स्टेम के पीसेस को हम स्टेम कटिंग कहते हैं। जैसे रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया, ये शुगर केन हो गया, वो स्टेम के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। Now student let's do fun activity to grow a plant from a stem. अब हमें स्टेम से एक प्लांट को ग्रो करना है। Cut a small portion of money plant stem, place it in a bottle filled with water, keep the bottle in the sunlight. You will observe rods developing from the stem within a week. आपको क्या करना है, मनी प्लांट स्टेम के छोटे से पोर्शन को कट करना है और एक बॉटल उसमें पानी फिल करना है और उसमें उसे लगाना है। फिर आप उस बॉटल को सनलाइट में रखेंगे तो आप देखेंगे उसके रूट्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए स्टेम में से कुछ ही हफ्तों में। नाउ नेक्स्ट इज लीव्स. The leaves of certain plants such as those of Bryophyllum produce buds on their margins. These buds grow into new plants when the leaves are placed in the moist soil. Plants like fungi and fern grow from the tiny structure called spores. Plants are also propagated artificially by grafting in mango, layering in jasmine and cutting in rose and sugarcane etc. बच्चों कुछ प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं जैसे ब्रायोफाइलम, उनके मार्जिन्स यानी एजेस पे बर्ड्स फॉर्म होती हैं, वही बर्ड्स न्यू प्लांट्स को ग्रो करती हैं जब उन्हें मॉइस्ट सॉइल में रखा जाता है। कुछ हमारे प्लांट्स होते हैं फंगाई और फंस जो होते हैं टाइनी स्ट्रक्चर के थ्रू ग्रो करते हैं, स्पोर्स के थ्रू। कुछ प्लांट्स जो होते हैं ग्राफ्टिंग के थ्रू ग्रो करते हैं, एग्जाम्पल मैंगो। कुछ प्लांट्स लेयरिंग के थ्रू, एग्जाम्पल जैस्मिन। कुछ प्लांट कटिंग के थ्रू जैसे रोज एंड शुगर केन। नाउ स्टूडेंट लेट्स डू फन एक्टिविटी.
Cut a small piece of potato that contains a bud, wrap it in moist cotton wool, keep it in a sunny place. After a few days, you will observe a new plant growing from the bud. आपको क्या करना, छोटा सा पोटैटो का पीस लीजिए जिसके ऊपर बर्ड होनी चाहिए और उसे मॉइस्ट कॉटन वूल में रैप कर दीजिए और उसे सनलाइट की प्रेजेंस में रख दीजिए. आप कुछ हफ्तों के बाद देखेंगे, कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि उसमें से न्यू प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट आता है क्रॉप्स एंड देयर कल्टीवेशन. क्रॉप्स कैसे कल्टीवेट की जाती हैं डिफरेंट सीजन्स में. Now, students, plants are the main source of food. Plants which are grown in large areas to provide food and serve other purposes are called crops. The process of growing crop is known as cultivation. बच्चों, plants जो है मेन सोर्स है फूड का. प्लांट्स जो ग्रोन किए जाते हैं लार्ज एरिया में फूड को सर्व करने के लिए, फूड पर्पसेस के लिए, उसी को हम क्रॉप्स कहते हैं. जो प्रोसेस होता है क्रॉप्स को ग्रो करने का, उसी को हम कल्टीवेशन कहते हैं. क्रॉप्स एंड सीजन्स. बेस्ड ऑन द सीजन दे आर ग्रोन इन क्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स, खरीफ एंड रबी. Now, what is kharif crops? Crops grown from June to September are called kharif crops. They are also called the monsoon crops. As they are grown during the rainy season, kharif crops include paddy, rice, maize, brinjal, cotton and groundnut. नाउ स्टूडेंट्स, जो क्रॉप्स हमारी जून मंथ से लेकर सितंबर तक ग्रो होती हैं वो खारिफ क्रॉप्स होती हैं. बच्चों, इन्हें हम मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि ये बारिश के मौसम में ग्रो करती हैं. पैडी, राइस, मेज ये आपके खारिफ क्रॉप के एग्जांपल हैं. नेक्स्ट इज रबी क्रॉप्स. क्रॉप्स दैट ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड द रबी क्रॉप्स. दीज क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन द मानसून रेन्स. व्हीट, मस्टर्ड, बार्ले एंड पी आर रबी क्रॉप्स. बच्चों, जो क्रॉप्स आपकी नवंबर से अप्रैल तक ग्रो करती हैं वो रबी क्रॉप्स होती हैं. ये मानसून यानी बरसात पे डिपेंड नहीं होती ग्रो करने के लिए. इसके एग्जांपल्स हैं व्हीट, मस्टर्ड एंड बार्ले. Now, process of cultivation. There are various processes in agriculture. First is preparation of soil. It involves loosening the soil. The process of loosening the soil is called tilling or plowing. Plowing is generally done using bullocks or tractors. बच्चों, सॉइल को लूज करना या उसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लोइंग कहते हैं, टाइलिंग कहते हैं. प्लोइंग बच्चों जनरली किसके यूज करके होता है, बुलक्स या ट्रैक्टर के थ्रू होता है. नेक्स्ट इज सोइंग. हेल्दी एंड राइप सीड्स आर सोन बाय वेरियस मेथड्स. सीड्स कैन बी सोन मैनुअली और बाय यूजिंग मशीन्स लाइक अ सीड ड्रिल. हेल्दी और सीड्स जो राइप हो जाती हैं, पक जाती हैं, वो अलग अलग मेथड्स के थ्रू सो की जाती हैं, बाय मशीन्स के थ्रू भी, सीड ड्रिल के थ्रू या हैंड्स के थ्रू भी. Next is irrigation. Supplying water to crop is called irrigation. This supply of water varies according to the type of soil, crop and season. बच्चों, वाटर को सप्लाई करना क्रॉप्स तक उसे हम इरिगेशन कहते हैं. ये सॉइल के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर एडेड टू द सॉइल टू मेक इट रिच इन मिनरल्स एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. बच्चों, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को सॉइल में ऐड किया जाता है मिनरल्स को इंक्रीज करने के लिए. Now, student, let's see amazing fact. Manure is better than fertilizers because it increases the water holding capacity of the soil, increases the number of friendly microbes and improves the texture of the soil. मैन्योर जो है फर्टिलाइजर से बेटर होते हैं क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, फ्रेंडली माइक्रोब्स ज़्यादा होते हैं मैन्योर यानी खाद में, और हमारे सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव होता है. Now next is protecting crops. Crops are protected from pests by spraying chemicals called pesticides and insecticides. Insects like caterpillar and grasshoppers and microbes like bacteria and virus cause disease in crops. These are called pests. बच्चों, जो हमारे क्रॉप को पेस्ट यानी कुछ रोडेंट से, इंसेक्टिसाइड से प्रोटेक्ट किया जाता है हमारे कुछ केमिकल्स को स्प्रे करके. उन स्प्रेइंग केमिकल्स को ही हम पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं. बच्चों, वो हमारे पेस्ट कोई भी हो सकते हैं, हमारे बैक्टीरिया, वायरस या हमारे जो ग्रासहोपर्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं. Now, students, pesticides kill the pests. Similarly, unwanted plants called weed which grow alongside crops and compete with them form resources and destroy using chemicals called weedicides. Large animals such as goat and cows can be kept away from fencing the fields. Farmers are also use scarecrows to scare away birds from the fields. बच्चों, क्या होता है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट को किल करने के लिए. जो भी हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जैसे कि वीड्स, वो हमारे क्रॉप्स के साथ खुद ही ग्रो करते हैं और उन्हें बिल्कुल अच्छे से ग्रो करने नहीं देते. बच्चों, इनको वीड्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है केमिकल्स के इस्तेमाल करके. उन्हें हम वीडिसाइड्स कहते हैं. बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे कि गोट्स, काउज, उन्हें फेंसिंग फील्ड से दूर रखा जाता है फेंसिंग करके, यानी कि उसको कवर करके. फार्मर्स जो होते हैं स्केयरक्रोज का भी इस्तेमाल करते हैं बर्ड्स को या कुछ भी हमारे फ्लाइंग लिविंग बीइंग को दूर करने के लिए फील्ड से.
Now student, next is amazing fact. Insecticides and pesticides are harmful as they affect more organism than they are intended to kill. इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग. The cutting and gathering of mature crop is called the harvesting. Harvesting can be done manually or using machines called harvester. बच्चों, क्रॉप्स को कट करना और उन्हें मैच्योर क्रॉप्स में गैदर करना, उसी को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. हार्वेस्टिंग हाथों से भी की जाती है और हार्वेस्टर्स के थ्रू भी की जाती है. नेक्स्ट इज स्टोरेज. Harvested crops are stored in safe, moisture-free, well-ventilated places and protect from pests. Farmers stores grains in jute bags or metallic bins. Large-scale storage is done in silos or granaries. बच्चों, जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होते हैं अब उन्हें ध्यान से सेफली रखना भी तो होता है, मॉइस्चर फ्री, वेंटिलेटेड प्लेस पे और पेस्ट से दूर. तो बच्चों, उनको जूट बैग्स या मेटालिक बिन्स में रखा जाता है. जो लोकल लार्ज स्केल स्टोरेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइलोस या ग्रेनरीज कहा जाता है. नाउ वेज टू ग्रो अ हेल्दी क्रॉप. टू ग्रो अ हेल्दी क्रॉप वी मस्ट डू द फॉलोइंग थिंग्स. लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. यूज हेल्दी एंड राइप सीड्स फॉर सोइंग. बच्चों, हमें हेल्दी और राइप सीड्स को यूज करना है सोइंग करने के लिए. प्लो द सॉइल प्रॉपर्ली सो डेट इनफ एयर इज अवेलेबल टू द प्लांट्स. बच्चों, प्लोइंग भी अच्छे से होनी चाहिए, जब भी तो आपकी सॉइल ब्रीथ कर पाएगी. एड मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स टू दी सॉइल. सॉइल में मैन्योर्स भी ऐड करने चाहिए जिससे मिनरल्स इंक्रीज हो. इरिगेट द सॉइल. सॉइल को इरिगेट करना चाहिए, वाटर करना चाहिए. यूज केमिकल्स सच एज इंसेक्ट एंड पेस्टिसाइड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड. इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल होता है जब जरूरत होती है. नाउ स्टूडेंट, बिकम अ चैम्प. नेम द फॉलोइंग. फर्स्ट, अ क्रॉप ग्रोन इन विंटर, इट इज wheat. Next, a fertilizer obtained from cow dung, manure. Now, an insect that harms crops, grasshopper. Next, grains are stored in it, silos या granaries. Now, student, let's see the new words. First is reproduction. The process through which a living being produce offsprings. एक ऐसा प्रोसेस जिससे कोई भी लिविंग बीइंग अपने ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस कर रहा है यानी बॉर्न कर रहा है. सीड कोट. द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड, सीड कोट कहते हैं उसे हम. कॉटिलीडॉन. द फर्स्ट पेयर ऑफ लीव्स डेवलप इन अ सीड. जो पेयर ऑफ लीव्स जो सीड के अंदर डेवलप होते हैं उसे हम कॉटिलीडॉन कहते हैं. जर्मिनेशन. द प्रोसेस ऑफ अ सीड प्रोड्यूस अ सीडलिंग. जर्मिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें सीड जो है सीडलिंग में डेवलप होता है. नेक्स्ट इज डिस्पर्सल. द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पैरेंट प्लांट. सीड्स का स्कैटर होना पैरेंट प्लांट से, उसे हम डिस्पर्सल कहते हैं. सो प्लांट सीड्स बाय स्प्रेडिंग ऑन दी अर्थ. बच्चों, प्लांट सीड्स को स्प्रेड करना अर्थ के ऊपर उसे हम सोइंग कहते हैं. प्लोइंग, टर्न अप और लूजिंग दी सॉइल. मिट्टी को ऊपर नीचे करना है, उसे ढीली करना, उसे हम प्लोइंग कहते हैं. नाउ स्टूडेंट, लेट्स लुक इन अ नटशेल. द कॉटिलीडॉन प्रोवाइड फूड टू द एम्ब्रियो. कॉटिलीडॉन ही एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है. सीड ऑफ कॉटन एंड डेंड्लियन आर डिस्पर्स्ड बाय विंड. जो कॉटन और डेंड्लियन के सीड्स होते हैं उन्हें विंड के द्वारा डिस्पर्स किया जाता है. प्लांट्स लाइक फंगाई एंड फर्न्स ग्रो फ्रॉम टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स. प्लांट्स जो होते हैं फंगाई और फर्न्स वो टाइनी स्ट्रक्चर से ग्रो करते हैं, उनको हम स्पोर्स कहते हैं. खारिफ क्रॉप्स इंक्लूड पैडी, मेज, कॉटन एक्सेट्रा. पैडी, मेज ये हमारी खारिफ क्रॉप्स होती हैं. प्लोइंग इज जनरली डन यूजिंग बलक्स और ट्रैक्टर्स. प्लोइंग बच्चे ट्रैक्टर के इस्तेमाल से भी की जा सकती है. वी मस्ट यूज हेल्दी एंड राइप सीड्स फॉर सोइंग. हमें अच्छी सीड्स को चूज करना चाहिए सोइंग करने के लिए. नाउ स्टूडेंट, लेट्स डू एक्सरसाइज 8. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. The outer covering of the seed is called a seed coat. B is the right answer. Which of the cut dash are carried by wind from one place to another? Cotton seeds. C is the right answer. Next is which of the following is not a kharif crop? इसमें से बच्चों खारिफ क्रॉप कौन सी नहीं है? A, wheat. Next is the process of growing a seed into seedling is called a germination. A is the right answer. The embryo gets food from embryo को food कहाँ से मिलता है? Cotyledon. B is the right answer. Now students, let's do exercise B. Give two examples for each of the following. Now first है आपका seed dispersed by wind. किसके wind के द्वारा कौन से seed disperse किए जाते हैं? Cotton and drumstick. Next, by water, coconut and lotus. Water lily भी लिख सकते हैं. By animals, animals के through guava and tomato. By explosion, P or
नाउ नेक्स्ट में हम लिखेंगे पॉपी, प्लांट्स that grow from stem cuttings, rose and hibiscus. नेक्स्ट इज रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? wheat and pea. Now, next is C exercise, fill in the blanks. The baby plant has a tiny shoot called plumule and tiny root called radicle. Non-flowering plants like dish, and dish do not reproduce by seeds. Fern, mosses, and fungi. Dish and dish reproduce by roots. Sweet potato, और now next में हम fill करेंगे carrot. Dash of coconut helps to carry it by water. Seed of coconut. The process of carrying seeds away from the parent plant is called the dispersion of seeds. Now, student, let's do exercise D. Write T for true and F for false statement. All seeds grow into new plants. Yes, it is true. Write T here. Seed coat provides the seed with food. Seed coat क्या seed को food भी provide करता है? No, cotyledon करता है. So it is false. The radicle starts growing in the downward direction. Yes, it is true. Spores are small, round and light seed-like structure. Yes, it is true. Plants like ginger and potato grow from roots जो होती हैं ginger और potato roots के through grow नहीं करते, stem के through करते हैं. So it is false. Now, students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.